अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। मैं विपिन अंकल और ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 7:29 ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 15 ਫਰਵਰੀ शिवरात्रि का दिन, बहुत पावन दिन मेरे सतगुरु महाराज जी का। और इस पावन अवसर ते मैं संध्या वेले का शुकराना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों समर्पित कर रही हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी ने आज एक सत्संग ब्लैस किया। सत्संग ते गई शामी 3:30 तो 5:30 का सत्संग सीगा और संगत जी सुबह ऐसी तबीयत सीगी कि उठ के तुरना भी बहुत मुश्किल होया दा सीगा। पर गुरु महाराज जी ने सत्संग च जान लई कोई प्रोग्राम नहीं सी। प्रोग्राम तां सोचना भी दूर, पता भी नहीं सीगा कि अज दा सत्संग है। मैं सोचा सीगा शायद वो सत्संग कल हो चुका, पर किसी नाल गल होई और उन्होंने कहा अज है उन्होंने घर सत्संग। और संगत जी लत्तां जिवें दुखदियां पईयां सीगियां, गुरु महाराज जी ने सोची पाई लत्तां दी मालिश करन लई। लत्तां दी मालिश कीती। गुरु महाराज जी दा जो जोत वाला तेल हुंदा है ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ मतलब लग्या उन्होंने घर तक पहुंचने ਨੂੰ। तो ऐसा कौन कर सकता है जो इंसान चलन ਨੂੰ भी बहुत मुश्किल हो रहा ਸੀਗਾ और पैदल तुरा के लेके गए गुरु महाराज जी। ये सब कुछ साडे सतगुरु महाराज जी ही कर सकते हैं संगत जी। और जो उत्थे मैं पहुंची उन्हों के घर जिन्हों के जाना सी संगत जी, मैं उन्होंने घर अगे भी गई हुई है, पर अज गुरु महाराज जी उत्थे पता ही नहीं चल रहा सी कि उन्हों का घर केड़ा है। कोई संगत ना दिखे, टाइम च भी 10 मिनट भी नहीं सी गए और मैं अगे अगे जाती रही किसी को पुछ के। और जिथे गुरु महाराज जी ने पहुंचाया उत्थे भी एक सतगुरु महाराज जी का ही सत्संग की तैयारी हो रही सी। ਜਦੋਂ मैं उत्थे जाके पूछया कि उन्हों का घर है जिन्हों दे मैं आना सी, वो कहते नहीं उन्हों का घर तो पिछे गली च रह गया। संगत जी उत्थे 2 आंटी सीगे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ 507 ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਕਾਰ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਆਏ।
ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਸਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਡਿਵਾਈਨ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਪੂਰਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸੋਫੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਈਜ਼ ਔਰ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋਈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਚ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਈਏ ਪੈਦਲ ਆਈਏ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ है, दूसरे के व्यवहार को देखकर इतनी चिंता करते हो, जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं, वो सब एक दिन आप खिलौना बनेंगे। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, उन सबको सबक तो मिलेगा ही। बेटा तुम अपने पर नियंत्रण रखना और कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि गुस्से में तुम गलत और सही में फर्क नहीं कर पाते। मैं सबके कर्मों का फल, कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता, इसलिए सिर्फ सिमरन करो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। सो बहुत 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 शुकराना ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਆਪ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ।
कब करेगा जो अगर मैं क्या करेगा जो अगर मैं तुझे डायरेक्ट मिल जाऊं? सोच ले। मुझे बोलना भी मुझे छोड़ना भी मुझे झेलना भी आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूं तो किसी और की जगह नहीं बचती। मुझसे मिलने का भी सहारा होना चाहिए। मुझसे मिलने का भी मुझे मिलने से भी सहना होना चाहिए। बाद में ना पछताना। तैयार हो जा। तेरे गुरु तेरे मंदिर में हमेशा बसने आ रहे हैं। इसके बाद तू किसी और मंदिर में ना जा पाएगा, क्योंकि खुद परम ब्रह्मेश्वर तेरे मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तेरा और मेरा रिश्ता आज का नहीं है। रिश्ता बहुत समय से पुराना है। मैं तुझे कई जन्मों से जानता हूँ। जब तुम मुझे जानते थे तब भी तुम मेरे सानिध्य में थे, और आज भी तुम मेरे साथ हो। सोच लो, मुझे खोज लिया, पर तुम सोचते हो तुमने मुझे खोज लिया, पर स्वयं मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ और उसको चला रहा हूँ। सो शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। कहंदे तुम तू मेरी बच्ची है, मैं तेरा पिता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र कर और हमेशा शुक्राना करती रहे। बहुत ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਈਜ਼ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਚਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਚਿੱਠਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ 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 ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਹ, ਨੇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ जय ਦਾ गुरु ਭਲਾ। जी, ਜੈ ਗੁਰੂ शुक्राना ਜੀ। गुरु जी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी आज दिन है शुक्रवार, तो मैं सारी माता रानी से बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7:10 और संध्या बेली का सत्संग कर रही हूँ। और आज डेट है संगत जी 13 फरवरी 2026। तो शुक्राना बाबा आपका अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज एकादशी भी है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप संध्या वेले मुझसे सत्संग करवाते हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं सत्संग करूंगी अपने पहले बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे के लिए मैसेज आया है। तो उसका मैसेज एक तो है कि उसे उसका दोस्त है, गुरुजी महाराज बोल रहे हैं वो धोखा कर सकता है। तो उसको थोड़ा सा समझा के, मतलब मैसेज में जो आया है उसको समझा के रखना है, उससे शेयर करना है मुझे कि ये मैसेज गुरुजी ने भेजा है। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये काम आप करते तो ज़्यादा अच्छा रहता गुरुजी महाराज, आप भाव डालते हैं उसके अंदर। क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं तो बच्चों को मतलब उस तरीके से नहीं लेते हैं। बाकी आपने जो बोला है वो तो मैं उसको बताऊंगी। तो शुक्राना है। सॉरी संगत जी, शुक्राना है। और संगत जी, मैं दूसरा शुक्राना करूंगी अपनी बेटी के लिए गुरुजी महाराज। एक दिन संगत जी ने मुझे बेटी का भी मैसेज आया था, गुरुजी ने दिया था। तो शुक्राना बाबा आपका उसके भी कष्ट काटने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। और संगत जी, एक और मैसेज मेरे पास आया था बेटे का कि तेरे बेटे के लिए मैंने एक लड़की मतलब देखी है या भेजी है, इस तरीके से कुछ है। और तू उसे ना नहीं करेगी, उससे मुझे एक्सेप्ट करना है, मतलब मुझे हाँ करना है। तो ठीक है गुरुजी महाराज, आपकी रजा में राजी हैं हम संगत परिवार। आप जो करोगे उससे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता, हम तो कभी नहीं कर सकते गुरुजी महाराज। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये आप ही करोगे सारे काम, और मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया है सब कुछ। और संगत जी, गुरु जी के जो इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करूंगी गुरु जी महाराज कि एक तो मैसेज था संगत जी कि तेरे घर में लक्ष्मी का वास है। दूसरा था कि मैं तेरे मंदिर में, घर के मंदिर में विराजमान हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए। और संगत जी, मैं नीम करोली बाबा का शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा के भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। और नीम करोली बाबा कहते हैं, बेटा सीताराम बोलना मत भूलना, सीताराम नाम का जाप करना, और हनुमान जी का पाठ जरूर करना। तो शुक्राना है नीम करोली बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतना अच्छा अच्छा सिखाने के लिए। तो संगत जी, ये छोटे छोटे मेरे पास बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं, बहुत सारे शुक्राने हो जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना है। और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। सबके कष्ट काटना, शालिनी आंटी का भी कष्ट काटो, जल्दी से वो ठीक हो जाए गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे पास शालिनी आंटी का के लिए ड्रीम आया था गुरु जी का। बहुत ही बड़ा कष्ट था शालिनी आंटी आपके ऊपर, जो गुरु जी ने काटा है। और शायद मुझे दिखा के गुरुजी ने ये भाव डाला कि ये मुझे शालिनी आंटी को बताना है। तो शालिनी आंटी, आप जब ठीक हो जाओगे ना, तो आप गुरुजी का शुक्राना जरूर करना, ठीक है। और अगर आप मेरा सत्संग सुनोगे तो जरूर करना शुक्राना। और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सबके कष्ट हरो गुरुपा, सबके संकट टालो, किसी पे कोई कष्ट ना आए, किसी पे कोई दुख ना आए, सबके बच्चे कामयाब हो गुरु जी महाराज। सबके रोग कष्ट बीमारी सब दूर करो गुरु जी। और संगत जी, मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी को बहुत बहुत थैंक यू करूंगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। और पूरी टीम के लिए भी थैंक यू बोलूंगी और शुक्राना करूंगी गुरु जी महाराज।
सब कामयाब हों, सब पे कृपा बनाओ, सब पे कृपा बरसाओ और सब पे मेहर करो गुरुजी महाराज। सबका परिवार सुखी रहे गुरुजी। और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो ये संगत जी मेरे छोटे छोटे से सत्संग रहते हैं और अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। शालिनी आंटी के लिए मैं मंत्र जाप भी करूंगी गुरुजी महाराज। जो आपने मुझे ड्रीम दिखाया है, उस ड्रीम के को देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी संगत जी। मैं सोच भी रही थी किसके लिए है, गुरुजी ने मुझे क्यों दिखाया। और वो ड्रीम मेरे पास 2 बार आया है। पहली बार शालिनी आंटी बीमार थी तब भी मुझे आया था, अब भी बीमार है तब भी आया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। आज मुझे गुरुजी ने समझाया है। तो शालिनी आंटी आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, आपके गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज किसी पे ना आए ऐसा कष्ट, किसी को मत देना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, ये संध्या वेले का शुक्राना और ये मंत्र जाप बहुत, मैं क्या बोलूं गुरु जी महाराज, आप तो सब जानते हो। सब कुछ अच्छा हो, सब पे कृपा बनी रहे, बस यही बोल सकती हूँ मैं। सबके कष्ट काटना गुरु जी महाराज, कोई भी संगत परेशान ना रहे। ऐसा लगता है ना कि बस हमारे ही साथ सब कुछ दुख कष्ट हो रहा है। गुरु जी महाराज सबके कष्ट हरो देवा। तो जय गुरु जी। सारी माता रानी से मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। सबके कष्ट हरो माँ। और मैं अपने पितरों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ उनसे। पितृ देवता क्षमा करना मुझे। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी मेरे पास एक मैसेज और आया था कि तेरी शिवरात्रि के दिन तू जो मांगेगी वो तेरा पूरा होगा। तो गुरु जी महाराज मैं क्या मांग सकती हूँ, आप ही देख लेना। जो मुझे जरूरत है वही देना गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। विपिन भैया, सौम्य भाभी, आपको बहुत गुरु बहुत जी थैंक यू शुक्राना है। गुरु जय जी। गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी महाराज मेरे परिवार को फिर से बचा लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज हमको फिर से न्यू लाइफ ब्लेस किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरी बेटी का भी कष्ट दूर कर दिए, अब थोड़ा सा रह गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज मेरे पति के संकट को भी काट रहे हैं सत्संग सुना सुना के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भगवान आँखों का सत्संग सुना रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। और लास्ट मैसेज में ही था, जल्दी से ये सत्संग सुन लो नहीं तो आँख खोना पड़ेगा। रात में भी सुने थे और अभी भी सुने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि भगवान को पता है कि आने वाले समय में क्या कष्ट उपस्थित हो सकता है, इसलिए भगवान सत्संग सुना के कष्ट को दूर कर देते हैं और काट देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल कुछ भयंकर संकट था, 2 दिन से बिल्ली आसपास मंडरा रही थी, पर गुरु जी के होते हुए हम निश्चिंत रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह सुबह ही मैसेज आ गया कि भयंकर संकट, बहुत भयंकर संकट मैंने तुम्हारा टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के छत्र छाँव में सुरक्षित चल रहे हैं। कुछ दिन से आत्मज्ञान का सत्संग सुना रहे हैं भगवान और सही गलत का भी सूझबूझ दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के होते हुए भी किसी प्रकार का दुख, तकलीफ़ और शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु जी महाराज बोले आज तुम्हारा यानी शनिवार को तुम्हारा दुख दर्द कष्ट का अंतिम दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संकट था गुरु जी महाराज ने टाल दिया। अब हमारे जीवन में खुशियों भरा पोटली
गुरुजी महाराज ने अमृत वेला में रख के आए हैं, ऐसा बोले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भगवान जी, गुरुजी महाराज मेरे सेहत को यानी मेरे शरीर को स्वस्थ कर दिए और हमको हर प्रकार से अच्छा कर दिए। बहुत सारा रोग चल ही रहा था, इलाज भी चल रहा था, प्रहार भी चल रहा था। अभी गला कुछ दिन से 3-4 दिन से बजा पड़ा हुआ है और बेवजह का खांसी होता रहता है। सत्संग में ही सुने थे कि नेगेटिव हावी होता है तो खांसी होता रहता है। न कफ है न परेशानी है, फिर भी सुर होते रहता है। बोलने लगो सोने लगो तो ज़्यादा तकलीफ़ होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का सत्संग, शुक्राना सत्संग, बाकी सभी संगत अच्छे से करते हैं। शब्दों का अच्छा लफ्ज़ यूज़ होता है, हमको ठीक से नहीं आता है। जो फील करते हैं उतना ही बोल पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। आप जब आ गए तब हमको किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने हमारा जीवन में सुख खुशियों भरा दिन जीवन दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन जिए, सुख से जिए, खुशहाल होकर जिए और हमेशा प्रसन्न रहें। ब्लेसिंग तो आप छप्पर फाड़ के देते हैं गुरुजी, और हृदय से हम ये महसूस करते हैं कि आप दिल से चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहें और हर बात के लिए निश्चिंत रहें, भयभीत नहीं रहा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज अमावस्या है और ग्रहण भी है। ग्रहण कितना बजे से हमको नहीं पता, भारत में है कि नहीं है पता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम भगवान से बहुत आराधना की थे। भगवान जी, पूजा पाठ तो छूट ही गया, शिवरात्रि पूजा भी करने दीजिए, पर बहुत थोड़ा सा घर में ही कर पाए। अब बहुत डिस्टर्ब होके करे, जो आह्लाद और आनंद से हम करते थे वो उस तरह से नहीं कर पाए। कितना हमको ही अंतर लग रहा था, बल्कि हमको लग रहा था जैसे हम पूजा पाठ भूल गए हैं। बहुत दिन हो गया ना, सब चीज़ छूटा पड़ा हुआ है, तो नज़दीक कर देता है, दूरी दूर कर ही देता है। थोड़ा परेशान, मतलब परफेक्ट जैसे मन अनुकूल वाला बात नहीं हो पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा है कि भगवान आशीर्वाद दे देते हैं, कृपा करते हैं। जैसे लोग परफेक्ट कीजिए तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है, वो बात हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सानन्दमानन्दवने वसन्तं हतपापवृन्दं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथ तं नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी गुरुजी महाराज जी को जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे कृष्ण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने आया हूँ। आज 17 फरवरी 2026 मंगलवार सुबह 8:23 हो रहे हैं। आज आप लोगों के सामने मैं एक नया शुक्राना सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले से ही टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भेज रहे थे कि तेरे साथ बड़ा हादसा हो सकता है, तुरंत सत्संग सुन, हादसा टल जाएगा। ये कुछ दिन मतलब तकरीबन 1-1.5 महीने पहले से ही। गुरुजी ने इससे पहले भी 1 साल पहले भी मुझे कई सारे हादसों से बचाए, सड़क हादसों से। जैसे पिछले साल 2025 के जनवरी में गुरुजी ने एक बार मुझे सत्संग सुनवा के मेरा एक हादसा टाल दिया था। मैं रात 9 बजे ऑफिस से घर लौट रहा था। उस वक्त रास्ते में चलते चलते एक जगह टर्निंग आया था। उस टर्निंग में मैं टर्निंग लेकर के जैसे सीधे रास्ते में घुस रहा था, मेरे ऑपोजिट साइड से और भी कई सारे गाड़ियाँ आ रहे थे, लेकिन वो एक लाइन में थे। कोई भी गाड़ी लाइन तोड़ के बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन एक स्कूटी ने अचानक से उस लाइन से बाहर आके सीधा मेरे तरफ आ गया था। लेकिन धक्का लगते लगते बचा, नहीं तो उस दिन मेरे साथ हादसा हो सकता था, क्योंकि उस आदमी ने लाइन तोड़ के अचानक से मेरे तरफ आ गया था। और अभी 1-1.5 महीना से सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरे जो सड़क हादसे टाला, वो यही है कि मैं दोपहर को जब ऑफिस जा रहा था, घर से निकल के मैं स्कूटी में सवार होके जाता हूँ। घर से निकलने के बाद रास्ते में चलते चलते एक जगह ऐसा आया कि रास्ते के साइड में एक बहुत बड़ा खाली जगह था, स्पेस था। तो उस जगह से अचानक से एक 4 व्हीलर रास्ते में आ गया था और मैं सीधा जा रहा था। उसने कोई हॉर्न भी नहीं बजाया, मतलब पहले से मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि वो गाड़ी उस खाली जगह से निकल के सड़क पे आ रहा है। मैं जब उस गाड़ी का सामने पहुंचा तो सिचुएशन कुछ ऐसा था, मैं सड़क पे अपने गाड़ी में सवार होकर चल रहा हूं और वो 4 व्हीलर सीधा मेरे तरफ, मतलब 1.5 से 2 फीट के डिस्टेंस, बस इतना ही दूरी था। अगर वो और थोड़ा आगे आ जाता तो मेरे स्कूटी में धक्का मारता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह से भी गुरुजी ने मेरे बचाव किया सड़क हादसे से। और एक घटना जो कल रात का है, ये आज सुबह मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये कल रात का है। कल रात 10 बजे मैं जब ऑफिस से घर लौट रहा था, तब लौटते वक्त 2 जगह पे मुझे सड़क हादसे से बचाया गुरुजी ने। एक जगह जो एक चौराहा है, चारों दिशाओं में रास्ता जाता है, वहाँ पर मेरे बाएं ओर और दाएं ओर दोनों तरफ ही व्हीकल थे। दाएं ओर 4 व्हीलर था और बाएं ओर बड़ा गाड़ी जैसे ट्रक जैसा था। वो ट्रक तो मुझे देख के ब्रेक लगा के रुक गया, मतलब मेरे बाएं ओर जो व्हीकल था वो तो रुक गया, लेकिन दाएं ओर जो 4 व्हीलर था
वो मेरे तरफ आ रहा था। बहुत नज़दीक आ गया, फिर जा कर के ब्रेक लगा और मैं उस चौराहे को पार करके रास्ते के ऑपोजिट साइड चला गया। ये पहला। और दूसरा यही, एक जगह पुल आता है, मेरा ऑफिस से घर लौटे वक्त एक जगह है जहाँ पर जुड़वा पुल है, मतलब दोनों साइड ही ब्रिजेस हैं। तो उस ब्रिज होकर के मैं जब गुजर रहा था, तब मैं जब अपना स्कूटी ड्राइव कर रहा था, मैं सीधा जा रहा था। मैं लुकिंग ग्लास देख के मेरे पीछे क्या है नहीं है वो पहले देखता हूँ, फिर अपना स्कूटी का पिकअप बढ़ाता हूँ। तो कल रात को क्या हुआ कि मैं लुकिंग ग्लास देख के स्कूटी को आगे बढ़ा रहा था उस पुल के ऊपर से। तो चलते चलते एक जगह ऐसा आया कि अचानक, उस वक्त लुकिंग ग्लास पर मेरा नज़र नहीं था, लेकिन अचानक मेरे पीछे से रोशनी आने लगी। मैंने देखा तो शायद कोई गाड़ी सामने आ गया। लुकिंग ग्लास में जब तक मेरा नज़र गया, उससे पहले ही मेरे दाएं ओर से तेज़ गति से एक स्कॉर्पियो गाड़ी निकल गया और वो बहुत रफ ड्राइव कर रहा था। जैसे रात को रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है, देखने वाला कोई नहीं रहता है, तो रफ ड्राइव ज़्यादा होता है, वैसे ही रफ ड्राइव कर रहा था। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं साइड पे था। अगर मैं बीच सड़क में रहता तो वो गाड़ी मुझे धक्का मारता। मेरे स्कूटी से उस गाड़ी का डिस्टेंस बस 4 फीट की दूरी था, 4 फीट का डिस्टेंस। तो इस तरह से मुझे कल रात को दोनों जगह पे, एक जगह चौराहा पे और दूसरे जगह पुल के ऊपर, नदी के ऊपर पुल था, उस पुल के ऊपर मुझे बचाया गुरुजी ने। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे कई सारे सड़क हादसे से बचाया। और एक शुक्राना सत्संग ये मेरे बेटी के ऊपर है। गुरुजी ने मेरे बेटी को अच्छा पढ़ाई और अच्छा करियर का ब्लेसिंग्स दी। ये बहुत पहले भी, 1 साल पहले भी दिया था कि मैं तेरे बेटी को, सत्संग के ज़रिए गुरुजी ने ये कहा था कि मैं तेरे बेटी को अच्छे पढ़ाई और अच्छे करियर का ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। ये पिछले 1 साल पहले भी। मेरे बेटी, उसका उम्र है 4 साल, वो प्ले स्कूल में भर्ती हुआ है, किंडरगार्टन स्कूल में भर्ती हुआ है। वैसे तो उसे सब कुछ आता है, जितना भी उसने सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल के मैम उसे कुछ पूछते हैं या फिर लिखने देते हैं और वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, ना लिखता है ना बोलता है। तो गुरुजी ने मुझे बताया था ये सब कुछ भी नहीं, बस तेरे पारिवारिक जो दुश्मन है उसने तेरे बेटी के ऊपर तंत्र क्रिया किया है, लेकिन चिंता मत कर, तू सत्संग सुन, मैं उसके तंत्र क्रिया को काट दूंगा और साथ साथ तेरे बेटी को अच्छी पढ़ाई और अच्छे करियर का ब्लेसिंग्स भी दूंगा। तो गुरुजी के ब्लेसिंग से मेरे बेटी के ऊपर अभी कोई तंत्र क्रिया नहीं है। वो अच्छी तरह से पढ़ लिख रहा है, जो भी होमवर्क स्कूल से देता है वो अच्छी तरह से वो करता है, काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था अच्छे मार्क्स आए थे उसका, और आने वाले महीने में, मतलब मार्च महीना में उसका फाइनल एग्ज़ाम है। तो मेरा ये गहरा विश्वास है गुरुजी के ब्लेसिंग से
वो फाइनल एग्ज़ाम में भी अच्छा करेगा, अच्छा मार्क्स लाएगा। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही तक है। आगे जाके और भी नया नया शुक्राना सत्संग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग कहने में मुझसे अगर कुछ गलती हुआ है तो कृपया मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।